Hello and welcome everyone. I am so glad you could join us today for this important Facebook Live session. My name is Dr. Sonal Garg, currently working as fertility specialist in Chandigarh. So today I am here to discuss a topic that affects millions of people worldwide. So many of us think that I do not have a child, what should I do? So, whether you are currently experiencing challenges in starting or growing your family, or you are simply looking to understand more about infertility, you are in the right place. I understand how emotionally charged this journey can be, so I am here to provide you with expert insights on the basic causes, treatments, and emotional support available for those facing infertility. So, today we'll cover the basics of infertility, common causes, the latest treatment options, and how you can best navigate this journey. We'll also talk about the mental and emotional aspects of infertility and how to stay hopeful and supported throughout the process. So we have with us today Sir Dr. Professor Dr. Colonel Pankaj Talwar. Sir is a distinguished clinical embryologist and infertility expert with over 30 years of experience in this field. Sir also holds a PhD in clinical embryology and has been a pioneering force in advancing fertility treatments. Dr. Talwar is the CEO of iHoma Fertility Clinics and iKate Training Academy based in Gurugram and Delhi. And also, Sir serves as the Dean of Department of Clinical Embryology and Reproductive Sciences at Sridhar University, Pilani. Along with this, Sir has played a key role in establishing 29 ART centers worldwide and renowned for his work in training healthcare professionals, probably the largest training academy in the Asia. I am also one of his students. Sir has trained over 17,000 doctors across 34 countries. So his expertise and contributions have earned him numerous medals, including the medal from the President of India himself, and also Sir is recognized for his work in ovarian tissue freezing in India. Additionally, Sir has been honored with several lifetime achievement awards, and how much ever I speak, it is less only in this time frame about Sir. And Sir is a respected leader in both clinical practice and education in reproductive health. So, throughout this session, I encourage you all to ask questions. I'll be reading them in the chat box, share your experiences, and engage with me. I'll do my best to answer as many questions as possible. And remember, you are not alone in this journey. So, let us all get started. Over to you, sir. So thank you so much, Sonal. Uh, I think it's very lovely day today. After 2 days, we are having some good weather in Delhi. After 3 4 days, I think we have seen आज बहुत दिन के बाद दिल्ली के अंदर थोड़ी धूप निकली है, but very chilly. I think same thing. How about Chandigarh? How's the weather Yes, in sir, Chandigarh? same only. But आज धूप नहीं निकली. अब दिल्ली में धूप निकली है आज. I think अच्छा दिन है आज का, and आज का दिन बहुत ही I think it's a very good day for all of us that we are entering into the new year from tomorrow evening. So we thought in place of being a party, we must talk to everyone. And here we both are talking to you and talking to everyone about what people actually worry about when they have some amount of fertility issues. So आज हम एक छोटी सी जर्नी पे चलेंगे. We do this program every 15 days or 1 month. And we do it on basis of जो भी लोग हमसे सवाल करते हैं उसके बेस पर भी डिसाइडेड टॉपिक. तो आज का टॉपिक है कि हमारे पास बेबी नहीं है, हम क्या करें. हमने कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े इश्यूज उठाए, जैसे मुझे पीसीओडी है, मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, ब्लॉक ट्यूब्स हैं, व्हाट डू आई डू, मेरा स्पर्म काउंट निल है, मुझे एजोस्पर्मिया है, मैं क्या करूं, मेरी ओवरी में एग नहीं बनते, मैं क्या करूं. सो हम कोशिश करते हैं कि हम सबसे कनेक्ट कर सकें, और जो भी हम जानते हैं अबाउट फर्टिलिटी इश्यूज वी शेयर विद ऑल ऑफ यू. So we have got Yes, sir. big experience, and today I'm so you are the shining star of Chandigarh and a very young budding infertility specialist, and I have got a lot of grey hairs. So I think हम दोनों मिलकर आज हम सारे सवालों का जवाब देंगे जो लोगों ने हमसे पूछे हैं. And before I hand over the mic back to you, Dr. Sonal, I think we'll welcome everyone who's here. A large number of you would be people who need some help. मेरे भाई बहन जो यहाँ पर हैं, हमारे
colleagues, doctors, हमारे students who all are here, a big welcome to all of you. And अभी हम आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी के अंदर. तो सोनल, over to you. You can start the day. Okay, sir. Thank you. सबसे पहले I'll ask the first question कि what is the definition of infertility and what are the most common causes of infertility in both women and men? सो अगर हम देखें इनफर्टिलिटी क्या होती है, मैं कुछ बातें हिंदी के अंदर भी बोलूँगा बिकॉज हमारे काफ़ी सारे जो लोग हमें ठीक सुनते है. हैं वो हिंदी भाषा में बात करना चाहते हैं सोनल. सो यू कैन टॉक इन पंजाबी ऑल्सो. So I can see Kandula Sumitra Hasna from Dhaka. So very happy new year to you, all of you. So infertility एक ऐसा इसे बोलेंगे डिजीज है, आप बोलेंगे, जो कि 1 in 6 कपल्स को अफेक्ट करता है. लेकिन 6 में से एक दंपति को यह प्रॉब्लम हो सकती है. इट्स वेरी कॉमन. अब कई बार हम सोचते हैं कि क्या इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, बट या फिर लोग ज़्यादा, अब दे हैव मोर मेडिकल फैसिलिटीज, दे आर कमिंग फॉरवर्ड, बट फिर भी 1 in 5 कपल्स टू 1 in 4 कपल्स में हैव दिस प्रॉब्लम. इनफर्टिलिटी का हिंदी में जो अगर हम शब्दीकरण करेंगे तो उसका मतलब होता है बांझपन. जिनका बेबी नहीं है, दे आर कॉल्ड, दे आर हैविंग सम अमाउंट ऑफ फर्टिलिटी, वी कॉल इट सब फर्टिलिटी. जो इनफर्टिलिटी के जो काफ़ी हद तक जो कॉजेज होते हैं, हमको पता ही नहीं हो रहे, कि हमें पता नहीं होता कि कॉजेज क्यों बच्चा नहीं हो रहा है इनका. सो इनफर्टिलिटी कैन बी देयर इन द मैन और इन द वुमेन, और दे कैन बी कॉमन फैक्टर्स, और वी डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग. तो मगर अगर हम एक आदमी की बात करें, व्हाई डज ए मैन हैव डिफिकल्टी इन कंसीविंग, अगर वाइफ ठीक है तो देन व्हाई डज ए मैन हैव ए प्रॉब्लम. सो मैन कैन हैव ए लो स्पर्म काउंट, जब उनके अंदर शुक्राणु की मात्रा कम हो जाती है, या फिर जो शुक्राणु बनते हैं उनका अच्छा क्वालिटी नहीं होता है, या वो बनते ही नहीं है, देन वी से दैट मैन हैज गॉट मेल इनफर्टिलिटी. एक बहुत कॉमन चीज विच आई एम फेसिंग, सोनल, sitting in Delhi, is that a large number of men have got now sexual disorders. इससे पहले हमने इस पे we have done one Facebook live about male sexual dysfunction, जिसके अंदर बोला जाता है कि erectile dysfunction, premature ejaculation, these issues are also very commonly coming up in our population. In the females, there can be blocked tubes. जो fallopian tubes, जो नसें होती हैं, they can be blocked. They can be unhealthy due to some disease like tuberculosis. या फिर हम देखते हैं आजकल काफ़ी कुछ लेडीज़ के अंदर एग की मात्रा कम होती है, जिसे हम कहते हैं कि पोर ओवेरियन रिजर्व. और देयर कैन बी सम मेडिकल डिजीजेस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दे कैन ऑल लीड टू लो एग रिजर्व. सो ये कॉमन जो कारण होते हैं यही हैं. और जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, आजकल वातावरण, अब कुछ समय पहले देखा होगा आपने कि वातावरण बहुत दूषित हो जाता है नॉर्थ इंडिया के अंदर. सो जब वातावरण खराब होता है तब भी ऐसा पॉसिबिलिटी रहता है कि दी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स कैन गो बैड. These are the common issues which we are facing nowadays. And one more common thing which I face at my end is that people are too busy. People are too busy to have a child. और जब आजकल जितनी भी हमारी बहनें हैं वो विवाह लेट करती हैं, they get married late because all women want to get married after they have become financially secure. So आजकल जैसे ज़माना बदल रहा है and all the women are getting empowered. वो चाहती हैं कि पहले उनका एक अच्छा जॉब हो, एक अपना छोटा सा एक घरौंदा, एक घर बना सकें अपने लिए, have a small bank balance, then they want to get married. But by the time they get married, age is around 38, 39, 40 years, and then they come in a hurry, then they want to conceive again. So that can be a challenge because in case a woman comes to us late, कोई भी हमारे पास हमारी बहन लेट उम्र में आती है तो उनके अंदर अंडे बनने की क्षमता कम हो जाती है और एक क्वालिटी भी खराब हो जाती है. These are common things which we face. And then again we are finding large number of women having PCOD. So PCOD is a problem where किसी भी लेडी के अंदर डिम की मात्रा बढ़ जाती है, we call it a PCOD. There can be endometriosis, there can be disease जिनके अंदर उनके अंदर विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है, विटामिन डी बॉडी में कम रहता है. लेकिन ऑल कम टुगेदर. कुछ कारण होते हैं जो कि सिर्फ मेल में है, कुछ कारण सिर्फ फीमेल पार्टनर के अंदर होते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर
कारण कॉमन रहते हैं एंड दे कैन लीड टू फर्टिलिटी, और a small category of people will be there in which we don't have any karan at all, and that is called unexplained infertility. Infertility. सबके इलाज डिफरेंट है, सब हर हर पेशेंट डिफरेंट है। सोनल, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे पास में आते हैं वो सब सब अलग हैं एक दूसरे के साथ। उन सब की Definitely, प्रॉब्लम्स sir. डिफरेंट तरह की हैं सोनल, और आपने खुद भी शायद ये नोटिस किया होगा कि नो टू पीपल आर अलाइक, सो वी हैव टू टैकल देम इन डिफरेंट वे। और सबसे बड़ा जो हमारा मैं बोलूँगा दुश्मन है, वो है हमारा दिमाग, which keeps thinking all the time, and that creates total khichdi in the mind, and that delays the right treatment. Yes. Yes, sir. वही है सर, आजकल मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शंस आर मोर कॉमन, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया क्लिनिक में। मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस और ऑफ द मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज इन बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स, तो उसके कारण दिस थिंग इज पर्टिकुलरली ऑन द राइज। बाकी जो आपने कॉजेज बताए कि ब्लॉक ट्यूब्स, एग्स नहीं बनना, पीसीओडी, एग का रिजर्व कम होना, या फिर मेल प्रॉब्लम्स, वो तो जो हैं वो वैसे ही इंसिडेंट्स में चलती आ रही हैं। तो सोनल, इन चंडीगढ़ के अंदर जहाँ प्रैक्टिस करते हैं एज ए फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, आपका क्या नज़रिया है अबाउट मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन? आपको लगता है कि मेन मेरे पास तो आते हैं ना, बिकॉज आई एम ए मेल प्रोबेबली, यस सर। आपको लगता है कि एज ए फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट मैन आपसे आकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, या उनकी वाइफ आपसे बात सर करती हैं? यस सर, वो करते हैं। इवन बोथ द कपल, वाइफ्स और मेन, दोनों डिस्कस करते हैं। दे आर वेरी ओपन अबाउट इट, एंड देन आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प देम ऑल्सो। यूजली Okay. एग्जामिनेशन के लिए वी समटाइम्स टेल द एंड्रोलॉजिस्ट और द यूरोलॉजिस्ट, बट आई यूजली काउंसल देम एंड प्रिस्क्राइब देम मेडिसिन। Wow, thank you so much. I'm so happy to see the change in the country. Thank you. Keep it up. थैंक Shabash. यू सर। इसके बाद जो अगला सवाल यूजुअली कपल्स हमें पूछते हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग शुड दे ट्राई टू कंसीव ऑन देयर ओन, कितना टाइम वो खुद से ट्राई करें बिफोर सीकिंग हेल्प फॉर इनफर्टिलिटी? डेफिनेटली, एक्चुअली इसका आंसर बहुत क्लियर है एज पर आर गाइडलाइंस, जो कि 2021 में हमारे पास में आई है भारत सरकार द्वारा। इट्स कॉल्ड एन ART एक्ट ऑफ 42। जैसे कि एक साल का समय, फर्स्ट ऑफ ऑल एज, वी ऑल नो दैट एज शुड बी 21 ईयर्स। अगर एक दंपति की एज 21 साल से ऊपर है, एंड दे हैव टू बी मैरिड, नो, पहले था यस दे सर। कुड बी प्रॉब्ली लिव इन पार्टनर्स, बट नाउ दे हैव टू बी मैरिड, फॉर्मली मैरिड, age more than 21, and in case they meet this criteria, they have to stay together for around 1 year or more than 1 year, and they can't, when they don't have a child, they are labeled to be having infertility. So first of all, उनका विवाह 21 साल के बाद में होना चाहिए, तभी वो लोग हमारे पास में प्रॉब्लम के साथ आ सकते हैं। उससे पहले हमें हमें उनको नहीं देखना है। और अगर वो 1 साल तक संभोग रखते हैं, when they have an unprotected intercourse for more than 1 year, and they don't have a child, then definitely yes, we can interfere. But sometimes you find a man has got a problem. The man may be having a sexual dysfunction, or the girl may be having some problem. जैसे अगर उनके अंदर किसी तरह का कोई, उनके अगर गर्भाशय के अंदर या गर्भाशय के बाहर योनि में कुछ अगर कोई झिल्ली है, सेप्टम है, और शी इज गॉट एनी मुलेरियन एनोमली, तब भी दे कैन कम अर्लियर एंड टेक ट्रीटमेंट। बट जब तक ऐसा नहीं है, तब तक उन्हें 1 साल तक वेट करना है, उसके बाद ही हमारे पास में आना है। सो लिमिट इज 1 year। ओके सर, आफ्टर दे हैव कम टू अस, हमारे पास आते हैं, तो उसके बाद व्हाट इन्वेस्टिगेशन शुड दे एक्सपेक्ट कि हम उनको बताएंगे फॉर द नॉलेज ऑफ ऑल कपल्स हु वुड बी सीकिंग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट? दिस इज ए वेरी, ये सवाल बहुत बहुत ही कई बार से वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज हम क्या करें। जो मैं आजकल देख रहा हूँ इन माई प्रैक्टिस, लॉट ऑफ people have made packages. The package for PCOD, package for endometriosis, package for male infertility, package for female fertility. ये पैकेजेस की हमें ज़रूरत नहीं होती है। आई ऑलवेज से दैट हमको बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करना है कम पैसे के अंदर। रिमेंबर सोनल, एवरीथिंग कॉस्ट मनी। नाउ अब हम लोग अगर सबका विटामिन डी करेंगे, जो कि वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स है हमारे पास फर्टिलिटी के अंदर,
that costs money. Vitamin D comes for rupees 1500. It costs a bit of money. Yes, sir. If you do an AMH, the billing may be rupees 1800 to 2000 rupees. And if you start doing everything for every patient, they are paying. So I think we should use our logic and start managing them. तो सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट है हमारे पास फॉर ए फीमेल पार्टनर, आई लाइक टू डू एन अल्ट्रासाउंड. हम विद अल्ट्रासाउंड वी कम टू नो उनका ओवरी में कितने एग हैं और यूट्रस में भी प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर फेलोपियन ट्यूब में अगर कोई सूजन होती है दैट ऑल्सो वी कैन कैच इन अल्ट्रासाउंड. तो बेसिक अल्ट्रासाउंड हमारा एक बहुत बड़ा साथी है हमारा, जो हमें उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है. Along with that, we should do their hemoglobin, blood sugar, and urine examination. इसके ऊपर हम कुछ और नहीं करते हैं. We need not do vitamin D testing because vitamin D testing is again an expensive test. तो हम उनको vitamin D supplementation सबको हम routinely दे देते हैं so that we save their money. Tube testing is very important, is a critical test because अगर tubes ही blocked है तो हम then we have to move towards IVF. Tubes खुली हैं then we do IUI. Keeping that in mind, we have to do very basic, simple investigations. You may like to do a thing called prolactin in case indicated, but एक बहुत बड़ा बैटरी ऑफ टेस्ट हमको नहीं करना है. तो मैं कहना चाहूँगा सोनल आपको, हमको किसी भी स्त्री के अंदर, any of our girls who come to us, we don't carry out any hormonal testing anymore. So no LH, no FSH, no progesterone, no AMH. Until indicated, हमें सब चीजें नहीं करनी है. Yes, sir. Keep the treatment cheap and affordable for everyone. And for the men again, I think we shouldn't spend money on a lot of things. We just carry out a simple semen analysis and morphology. And in case they have got multiple failures before, then we can also carry out DNA fragmentation index. But normally we do very simple testings. I think हम जो भी करें ये पूरा का पूरा पैकेज 5, 5,500, 6,000 में निकल जाना चाहिए. फॉर वर्कअप ऑफ द मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों का अगर हम कंबाइन करें तो अराउंड 6,000-6,500 में पूरा टेस्टिंग हो जाना चाहिए. दैट इंक्लूड्स HSG ऑल्सो, सब मिला के. अदरवाइज मैंने देखा काफ़ी लोग हम जब लिखते हैं तो वी राइट मैनी थिंग्स. वी राइट इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन, पोस्ट पेंडियल इंसुलिन, we do DHEA, we do testosterone, LH, FSH, prolactin, progesterone. ये सब जांच हमको नहीं करनी चाहिए. और आई कैन सी डॉक्टर सुब्रत दास राइटिंग DNA fragmentation. DNA fragmentation is a very good test. हम करते हैं, but they should have an indication, not for every patient. So हम डॉक्टर हैं, देखो, we should see the patient clinically. हम एक पैथोलॉजी लैब नहीं चलाते. We are not here to do testings. We are here to do clinical correlation. And for that, अगर आप किसी men को एग्जामिन करते हैं अच्छे से और किसी फीमेल को एग्जामिन करते हैं, carry out a good ultrasound, lot of information we get from basic workup, and that's all is needed. How many times do we examine a man? तो सोनल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जनरेशन के अंदर आप बहुत यंग हैं और अपकमिंग डॉक्टर हैं चंडीगढ़ के अंदर. How many of you examine the men? Sir, semen analysis abnormal आता है. I usually don't examine, but I refer to urologist, andrologist में. हाँ, तो ना Who is अगर with हम, us? yeah, very right. So अगर हम देखें ना सोनल, तो हम सब के सब एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, स्कैन करेंगे, रेफर करेंगे, मल्टीपल हार्मोनल प्रोफाइल्स करेंगे. इनकी ज़रूरत नहीं है. अगर हम एक मैन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं ठीक से, वी कैन सी द वॉल्यूम ऑफ टेस्टिस, we can see vast deferens, we can see any varicocele. I think we are all done with that only. तो clinically हम बहुत सारी चीज़ों का जवाब दे सकते हैं, या फिर उनका हम पूरा बैटरी ऑफ टेस्ट करें. बैटरी ऑफ टेस्ट means just pay rupees 10,000. I think for men you need not spend any money at all. Only one simple semen analysis which we can do under a microscope. I think that's good enough for the men. And for the women, only one important test is tube testing. अगर ट्यूब टेस्टिंग ठीक है, then we can be reassured that things are fine. Yes, we should check the endometrium on day 8 or day 9 to look at कि उनका लाइनिंग कैसे बन रहा है. And third is their ovarian reserve, which we can do on day 2 or day 3. That's all from my side. इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन which couples usually ask is,
कि आर देयर एनी नेचुरल वेज टू इम्प्रूव फर्टिलिटी बिफोर प्रोसीडिंग फॉर ट्रीटमेंट, कि कुछ नेचुरल वेज, कुछ डाइट, कुछ लाइफस्टाइल, what is the importance and what they should inculcate in their lifestyle? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये हमारी हमारी जो डेली के दिन चल रहे हैं ना, उस पर आकर अफेक्ट होता है। बिकॉज सोनल, व्हाट आई एम फाइंडिंग इज दैट हम सब लोग बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं। मैंने बोला कि हमारे पास जो हमारे हमारे दोस्त आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, दे आर इम्पेशेंट बिकॉज दे आर गेटिंग मैरिड लेट। 39-40 दे कम टू अस इन ए हरी। और कुछ हमारे पास जो हमारे फ्रेंड्स आते हैं, दे कम आफ्टर वॉचिंग गूगल। वो गूगल में जाते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं। सो जिनको भी कुछ कंफ्यूजन हो, दे कैन गो टू आवर यूट्यूब चैनल। वी गॉट लॉट ऑफ वीडियोस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। गो एंड वॉच आवर यूट्यूब चैनल। What are many problems. So when they're having misinterpretation of the facts, or they come to us late, they go in a total hurry. अब वो हरी के अंदर है और हम भी हरी के अंदर है, बिकॉज हमको भी है कि फटाफट कुछ करें। बिकॉज अब जगह जगह पे देर आर IVF सेंटर्स एंड IUI सेंटर्स, तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्लिनिक्स हर जगह खुल गए हैं, पेशेंट्स हैव ए मोर चॉइस, पेशेंट हर जगह पे बात करते हैं। सो वी ऑल आर समहाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर ए रॉन्ग थिंग विच इज़ हैपनिंग। तो मैं आज ये बहुत बात बोलना चाहूँगा कि हम सब लोगों को भी ना बहुत शांत होकर, हम सब डॉक्टर्स को मिलकर एक प्रोटोकॉल फॉलो करनी चाहिए। तो अगर एक पेशेंट को सोनल ने देखा लाइफ में, आज कोई हमारे पर डिपेंडेंट है, ही इज आवर पेशेंट, बट सोनल शायद आज शाम को मैं पेशेंट बन जाऊँ, आई मे हैव ए प्रॉब्लम। तो लाइफ इज अ बिग सर्कल। तो वी हैव टू सी दैट जो भी हम अपने भाई बहनों को दें, दैट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अगर मैंने कोई चीज़ लिखी, देन सोनल शुड ऑनर इट इन चंडीगढ़। अगर आप लिखते हो तो समवन शुड ऑनर इट इन मुंबई। जब हम इस लेवल पर आ जाएंगे, वील हैव यूनिफॉर्म मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। और यूनिफॉर्म मेथड क्या बोलता है कि हमको पहले हर पेशेंट को एक प्री ट्रीटमेंट देना है। अगर उनका अपने आप से बेबी हो रहा होता तो हमारे पास तो नहीं आते ना। देयर इज सम प्रॉब्लम, समटाइम्स द प्रॉब्लम इज इन द ब्रेन। तो हम कई बार जब बात करते हैं तो कुछ आंसू छलक आते हैं, कुछ आंसू उनके छलकते हैं, कुछ आंसू हमारे छलकते हैं एवरी डे। कई बार लगता है कि मैं पेन का इस्तेमाल कम करता हूँ और मैं टिश्यू पेपर ज़्यादा देता हूँ पेशेंट्स को। तो एवरी डे आई गिव अराउंड 30-40 टिश्यू पेपर्स टू द पीपल हू कम टू मी। और कुछ टिश्यू पेपर मेरे को अपने लिए भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं जब उनके जीवन की बातें सुनता हूँ तो। सो फर्टिलिटी में अकर इन समबडी कमिंग फ्रॉम डेनमार्क, फ्रांस, इटली, इट में अकर इन समबडी कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल विलेज। कितने भी हमारे पास कितने भी सोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज होंगे, बट प्रॉब्लम सबका सेम है, सेंटिमेंट सबके सेम रहते हैं। सो आई थिंक वी शुड नॉट बी इन ए हरी। First of all, if we all doctors, a message for everyone around is that we should have confidence in ourselves. जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और हमें कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। So that is the answer to your query. We have to heal their mind first. अगर उनके माइंड के अंदर प्रश्न है, उनके माइंड के अंदर अगर कुछ भावनाएं हैं अच्छी या बुरी, हमें उनको हील करना है, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रीट द माइंड फर्स्ट। सेकेंडली, जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हमें दिखते हैं, we take 1 month to diagnose the cause of, within 1 month we should be able to diagnose the cause of their fertility issues। एक महीने में हमें पता कर लेना चाहिए। Then we should do their pre-treatment। So मैं सोनल आपको एग्जांपल देना चाहूँगा छोटा सा लाइफ का, कि अगर आप चंडीगढ़ में हैं और बाहर ज़मीन तप रही है, बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है, अगर आप गर्मी में जाएंगे तो हमारा पाँव जल जाएगा। So we have to wear a chappal before, until we wear a chappal, we should not be going out. So this is called pre-treatment. We have to give some sort of vitamins. We may give some, say, folic acid to the female, give her some multivitamins, counsel her, talk to her, look at her uterine lining, and then we should be going and doing their treatment in terms of time intercourse, IUI or IVF. So we must treat the patient for a month or so, और इवन मोर, दैट इज कॉल्ड प्री ट्रीटमेंट। और सब होने के बाद ही हमको वी हैव टू गो अहेड एंड डू देयर IUI और IVF, नॉट बिफोर दैट। और मैं भी बोलना चाहूँगा कि हर केस को दे डोंट नीड एनी इंटरवेंशन।
half of my patients they become pregnant after they talk to us. They know their problem Yes, sir. and they become pregnant. जो बात आप भी थोड़ी देर पहले मेरे को बता रही थी आप, that's the way it should be. So पहले क्या करें, उनको हमें बोलना है अपना थोड़ा डाइट ठीक करें. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सोनल, विटामिन डी का कमी ना हो बदन के अंदर, हमारा थायराइड ठीक हो, उनका वजन ठीक रहे, उनका वेट ठीक रहना चाहिए. सम वुमेन ड्रिंक, सम मेन स्मोक. आजकल एक नया ज़माना है, एक नया भारत है यहाँ पे. अ, सब के सब हम एक यूरोपियन या अमेरिकन वे से अपना जीवन शैली व्यतीत करते हैं. सो वी आर ऑल लाइक अमेरिकन इन आवर कंट्री. सो वी हैव टू प्रिपेयर, वेट ठीक हो, स्मोकिंग कम हो, ड्रिंकिंग मत हो. काफ़ी लेडीज हुक्का पीती हैं आजकल, बहुत कॉमनली मैंने से. आप सिगरेट पीती हैं? नहीं, हम सिगरेट नहीं पीती, हम तो शीशा लेती हैं. तो मुझे पहले समझ नहीं आता था कि शीशा क्या होता है, पता चला शीशा हुक्का होता है. कुछ मैन बोलेंगे बड़े स्टाइल के साथ, नो नो वी डोंट स्मोक, आई डू वेपिंग. आई सेड व्हाट इज वेपिंग? तो वेपिंग एक आर्टिफिशियल तरह का सिगरेट ई होता है. सिगरेट. सो ये सब चीज़ें, अगर कोई ड्रग लेता है, कुछ करता है, तो थोड़ा अपने आप को शांत करना है. सो हम सब सोनल, तुम, मैं और सारे पेशेंट लेके प्रेशर कुकर, व्हेन दे कम टू अस, सो वी हैव टू जस्ट एक सीटी निकालनी होती है ना, उसका बॉल निकालना है, उनको शांत करना है. ये पूरा गर्म हवा निकल जाएगा. दैट टेक्स अराउंड मंथ और 45 डेज. बट ये करते हैं हम लोग. हम डरते हैं कि अगर हमने इलाज नहीं करा तो कहीं और चले जाएंगे. सो आई थिंक वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड heal them mentally, give them tissue papers, quieten them, and then go and do their treatment. Thank you. So we True, have sir. Sonal Usha Yadav madam from Virginia. Great. Hi, Dr. Usha. How are you? We've got Dr. Zahida Angel. Dr. B. Yes, Dr. sir. Zahida Angel, she's there with us. We have Dr. Ben from Kenya. Fantastic. Thank you so much for joining Yes, sir. in such large numbers. Over to you, Sonal. सर बिल्कुल सही कहा आपने सर. बिकॉज आफ्टर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड आफ्टर समटाइम्स इवन अ बिट ऑफ काउंसलिंग, नेक्स्ट टाइम couples come spontaneously and they are so happy that we just needed this bit dosage of counseling at that सीटी निकालना from that pressure cooker. बिल्कुल That बिल्कुल really बिल्कुल works. बिल्कुल. और सीटी हमें अपनी भी निकालनी है. एक और चीज याद रखिए, वी Yes, ट्रेन sir. सो मेनी पीपल ऐसे, हमें हमारे माइंड के अंदर से भी ना, वी हैव टू क्रिएट पीस. इतना बोलना चाहूंगा कि मैं दिन के अंदर 20 टिश्यू पेपर देता हूँ पेशेंट्स को, तो आंखें साफ करने के लिए. कुछ हमें अपने लिए भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं. तो हमें भी शांत रहना है, उनको भी शांत करना है. तो सबसे पहले आई थिंक वी शुड से, लोग कहते हैं कि हम क्या करें, सबसे पहले कहते हैं हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को शांत करें, तभी उन्हें शांत कर पाए. सो लुक आफ्टर Definitely, योरसेल्फ. sir. ओके. उनको शांत करके then the little bit of medicine, even the smallest dose they respond to, sir, after यस. they are counseled properly. हैंड होल्डिंग करना है Then सोनल, next, हैंड होल्डिंग करना है उनका. next, अगर पकड़ेंगे ना yes, sir. और सर पे हाथ रखेंगे तो हम्म. सब हो जाता है. बोले. अगला सवाल सर कि आफ्टर दे कम टू आवर क्लिनिक, उनको जो हम मेडिकेशंस देते हैं, लेट्रोजोल, क्लोमिफेन या फिर हार्मोन इंजेक्शंस, व्हाट इज द रोल ऑफ दोज मेडिकेशंस फॉर ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी? सो इन सब दवाइयों का अपनी जगह पे सबका रोल है. ये सबको हमें देनी पड़ती है बिकॉज जो हमारे पास जो भी लोग आते हैं, या तो उनके डिम बनते नहीं, या डिम कमज़ोर होते हैं, डिम का नंबर, एक्स का नंबर कम होता है. सो वी हैव टू मेक मोर नंबर ऑफ एक्स फ्रॉम देम. सो वी गिव देम लेट्रोजोल, क्लोमिफेन, टेमोक्सिफिन टू मेक नंबर ऑफ एक्स फॉर देम. जितनी भी दवाइयाँ हैं इन्हें कहते हैं ओरल ओमेलोजेंस. सो क्लोमिफेन, लेट्रोजोल, tamoxifen, we give it to the people, and they will help a woman to make more number of eggs and healthier eggs. So we give these tablets. इनके साथ में we can also combine some uh, intramuscular और subcutaneous injections like FSH और HMG. So इनके साथ में अगर हम इनको सब ये दवाइयाँ देते हैं, टीके लगाते हैं, the chance of conception will increase. उनका माँ बनने का चांस, माता पिता बनने का चांस, गर्भ धारण करने का चांस बढ़ जाता है. बट हेयर डॉक्टर सोनल, मैं ये बात बोलना चाहूँगा आपको, छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, दैट इम्पॉर्टेंट हेयर इज दैट हर जिनको भी बेबी नहीं है
उनका इलाज आईयूआई है? बिल्कुल नहीं। उनका इलाज आईवीएफ है? बिल्कुल नहीं। आई थिंक आईवीएफ इज वन लास्ट थिंग वी कैन डू फॉर एनी कपल, और आईवीएफ की मात्रा बहुत कम Definitely. होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बोला कि वो सब भागते हुए आते हैं हमारे पास, भागते हुए आते हैं। शादी करेंगे 40 पे, उनको 41 के ऊपर उनको बेबी चाहिए, भागते हुए आएंगे। कुछ कपल्स तो ऐसे आते हैं हमारे पास, आई गेट यंग गर्ल्स ऑफ 28 ईयर्स, कहती हमारे एक बैंक कर लो। हम कहते तुम शादी कर लो। कहते हैं तुम डॉक्टर हो के हमारे मम्मी पापा बन गए हो। वेरी कॉमनली जैसे यू आर अ पापा और यू आर अ डॉक्टर, वी कम फॉर एग बैंकिंग, तुम कहते तुम शादी कर लो। So there are young girls who are coming for egg banking. There are girls coming at 40 years of age. They come for egg banking. I say यार 40 पे तो शादी कर लो। कहते हैं हम अपने पापा के पास में नहीं है, पापा घर में है। तो हमारे एग निकाल के प्लीज कर लो। सर 40 also they are not decided क्या होने वाला है उनकी लाइफ के अंदर। I think we have to, it's a social cause. It's a social cause. So IVF last priority है. IUI yes we should do when they are not able to conceive. But एक बहुत अच्छा तरीका होता है सोनल, which is called a timed intercourse. अगर एक कपल को हम ओव्यूलेट करें, अच्छे से उनको ये गोलियां दें जो आपने बताई है ना, क्लोमिफेन, लेट्रोजोल, कुछ टीके लगाएं, when they ovulate we can trigger them and then they can have a timed intercourse. This is what is the real test of a doctor. आईवीएफ करना एक बहुत ही आसान प्रतिक्रिया है, बट उनकी प्रॉब्लम को समझना और उनको बहुत जेंटली हैंडल करना विदाउट डूइंग एन आईवीएफ, दैट मेक्स यू अ बेटर डॉक्टर। आईवीएफ कोई भी कर लेता है। सो ए मैच्योर डॉक्टर, जो एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर कहते हैं ना, वो नब्ज देख के बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है, या बीपी चेक करके बताएगा, और somebody can take the whole 50 पेज का रिपोर्ट, इको से लेके सब कुछ, टीएमटी, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड्स, फिर बोलेंगे ये प्रॉब्लम है। I think we should handle our patient with a lot of care and affection, and they respond very well. Definitely, sir. It's, The way we handle them, utna hi acha patient responds. So after we give them injections, sometimes the patient couples uh, ovulates well and then conceives with timed intercourse. Uske baad next question आता है IUI. So what is intrauterine insemination और ये हम किन couples में usually recommend करते हैं IUI? जिन भी लेडीज और कपल्स के बेबीज नहीं होते हैं और उनकी ट्यूब्स खुली हैं, फैलोपियन ट्यूब्स या तो एक या दोनों ट्यूब्स खुली होनी चाहिए, और स्पर्म काउंट तकरीबन 5 से 6 मिलियन होना चाहिए। अगर ऐसा है देन वी शुड गो इन फॉर आईयूआई। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सोनल, सबसे पहला जो काम होता है, हमारे पास में ना एक जादू की छड़ी है। जादू की छड़ी क्या है मेरे को बताएंगे आप? हर डॉक्टर के पास में उसकी ओपीडी में जादू की छड़ी रहती है। वो क्या होती है? टीवीएस प्रो। Yes, टीवीएस प्रो जादू की छड़ी है हमारे पास। तो टीवीएस प्रो अगर हम एक स्कैन करते हैं ना, तो हमें पूरा एनाटॉमी दिखता है वुमन का, हमें पता चलता है। तो टीवीएस प्रो में ना हमारी आंखें हमारी फिंगर्स पर आ जाती है एक तरह से ना, लाइक जब पहले हम पीवी किया करते definitely, sir. हैं ना, हमारी आंखें हैं वहाँ पे, हम देख पाते हैं सब कुछ। सो अगर यूट्रस ठीक है, ट्यूब्स ठीक है, देयर इज नो हाइड्रोसेल्पिंग्स, और एसआईएस आजकल करने में 2 मिनट लगते हैं, वी डोंट हैव टू डू एन एचएसजी आल्सो। ओपीडी के अंदर ही वहीं पर वी कैन पुट सम वाटर एंड वी कैन लुक एट द ट्यूबल पेटेंसी। सो आई थिंक अगर सब कुछ ठीक है तो डॉक्टर उषा इज राइटिंग टीवीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, राइटली सो। अगर ट्यूब्स खुली हैं देन वी शुड ऑलवेज गो इन फॉर एन आईयूआई। What important here is that we have to make them ovulate. अगर हम उन्हें ओवुलेट करा पाते हैं, आर जर्नी इज हाफ द टाइम डन, बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन दे आर पीसीओडीज, दे ओवुलेट लेट, उनको पता ही नहीं कि उनका एग कब बन रहा है। कुछ गर्ल्स ओवुलेट अर्लियर, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका एग कब बन रहा है, एंड दे वो आपस में रिलेशन रखते हैं एक सिखलाए गए तरीके के साथ में कि 12वें दिन 13वें दिन हमने साथ में रहना है। तो उनका एग रिलीज ही हो रहा है 9th डे पे या 24th डे पे, तो कैसे बेबी होगा उनको? सो आई थिंक मैंने पहले आपके सवाल को रोका और थोड़ा मैं पीछे लेकर गया आपको कि टाइम ट्रिगर एट द राइट टाइम एंड टाइम इंटरकोर्स इज अ वेरी वेरी गुड मेथड, नंबर 1। और हम आईओआई तब करेंगे जब हम ये सब कर चुके हैं,
जब इस प्रणाली को हम फॉलो कर चुके हैं, इसके बाद आईयूआई आएगा। ये नहीं कि पेशेंट आया भोले भाव, दे कम टू अस विद केयर और आते ही हमने लिखा आईयूआई, वो नहीं होना चाहिए। तो दे शुड गो थ्रू कम से कम 2 या 3 साइकिल ऑफ टाइम्ड इंटरकोर्स इन अ वेरी फॉर्मल वे। इट्स अ फॉर्मल वे by where I give a trigger also. I'll give an injection to break her egg. Then now we'll say no IUI. आप छोटी लैपटॉप को बंद करो, अब लैपटॉप को बंद करो एंड गो ऑन ए शॉर्ट हॉलीडे। उसके बाद आईयूआई आएगा। और अगर किसी भी स्त्री का अगर ट्यूब्स एक या दोनों खुली हैं और हस्बैंड का स्पर्म काउंट बॉर्डर लाइन या एवरेज से है या उससे ऊपर है, दे शुड दे डिजर्व एन आईयूआई। और हम आईवीएफ तब करते हैं जब उनकी ट्यूब्स दोनों ब्लॉक्ड हैं या स्पर्म काउंट बहुत कम है या ना के बराबर है, या फिर दे नीड एग शेयरिंग एग डोनर साइकिल्स और स्पर्म डोनर साइकिल्स। Even a sperm donor will carry out IUI itself. IUI. In case somebody wants a surrogate, somebody needs donor cycles, somebody wants PGS, PGT, somebody has got दोनों ट्यूबें बंद हैं. Only in that case we go in for an IVF. Otherwise we don't do IVF routinely for any patient. Yes, 3 या 4 IUI किए, हम फेल हो गए. We're failing 3 to 4 IUIs, then we go in for an IVF. But IVF is never the first line of treatment in any woman till the time her tubes are open and sperm count is more than 5 or 7 million post wash. ऐसे केसेस में हमें आईवीएफ नहीं करना चाहिए। एक और सवाल है डॉक्टर सोनल बाय प्रियेश निगम। यस सर। डॉक्टर निगम जानना चाह रहे हैं हाउ टू क्योर हाई डीएफआई। तो निगम, पहला इसका जवाब रहेगा कि पहले डायग्नोस करो कि डीएफआई हाई क्यों है। हाई डीएफआई को क्योर करना गलत है, कारण को पकड़ना जरूरी है। सो देखिए, उन्हें अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वो स्मोकर है, ड्रिंकर है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं या उन्हें कुछ बीमारी हुई है, तो इन सब चीज़ों को पहले हमने क्योर करना है, हमें कारण ढूंढना है इनका। ए लार्ज नंबर ऑफ सो सोनल इन योर इन चंडीगढ़ व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ रेस्ड डीएफआई? क्या कारण मिलता है आपको डीएफआई हाई होने का इन योर प्रैक्टिस? सर डायबिटीज मोस्ट कॉमनली। डायबिटीज, मुझे लगता है ओवरवेट in my population. A large number of young people nowadays, no, they all go to gym, खूब जिमिंग करते हैं, बॉडी बनाते हैं, फिर शादी होती है तो they gain weight. So their T/B ratio is reversed. So they may have big tattoos over their body. They look so fit, healthy. They look so fit and healthy. But उम्र के साथ वो वजन गेन कर लेते हैं और वजन गेन करने से टमी पे फैट आ जाता है and as a result they will have reversal of T/E ratio that can lead to poor sperm count. Yeah, that's very important. So आप देखिएगा अपने पॉपुलेशन में जो भी इनका BMI हाई होता है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स हाई होता है, उनके अंदर वी कैन हैव पुअर स्पर्म काउंट आल्सो. सो जब हम ढूंढ लेंगे कारण, उसके बाद we'll treat them. And treatment is by antioxidants and maybe antibiotics in case they have an infection. Basically antioxidants, fighting stress. और हाउ टू क्योर, मेरा तो फेवरेट है कच्चा आंवला। मैं सब कहता हूँ चॉकलेट खाओ 70% कोका वाली लिंट की चॉकलेट खाओ, उससे स्पर्म काउंट बेटर हो जाता है। आई विल से हैव आंवला, कच्चा आंवला, अगेन नॉट, वो कहते हैं आम का मुरब्बा खाते हैं, उनको कच्चा आंवला खाना होता है, फ्रेश आंवला। आप अखरोट और शहद खाइए, बहुत बढ़िया है। रात को अखरोट को पानी में शहद में डुबोइए और सुबह से खा लीजिए। You can make it a green tea in case you want to and have it. I am fond of goji berries. I give a lot of people goji berries. And सबसे ज़रूरी है कि माइंड को शांत करें, and I think it will take 3 to 4 months for DFI to become better after we have treated everything else. But yes, remember this, that we have to also ensure कि उनका morphology ठीक हो। सिर्फ DFI ठीक नहीं करना, मैं morphology भी ठीक करना होता है। Sorry सोनल, मैं बीच में रोक लेता हूँ आपको, तो sorry for that. नहीं sir. Over to you. Sir, we have one more question by Zara Ansari. If PCO1 AMH is 9 and on letrozole 2.5 mg BD, no follicle recruited, what to be done? So Zara, ये बात हमने शायद कई बार पहले भी डिस्कस करी थी when we had a session on PCO. AMH 9 is a
अगेन ए बिग प्रेशर कुकर जिसमें खूब सारा प्रेशर है. बी वेरी केयरफुल. We can always land up in the problem in such a patient. AMH is high. So अगर आपने 5 मिलीग्राम लेट्रोजोल दिया, so मैं क्या करूँगा, आई मेक गिव इट फॉर 7 days. 2 बार दूंगा 5 मिलीग्राम 5 दिन के लिए, और फिर दूंगा 7 दिन के लिए. इन केस नो आउटकम कम्स, देन आई विल एड आफ्टर 5 days HMG. So PCO9, I'll start with 37.5% of 37.5 units of FSH or HMG. That doesn't make a difference. So add 37.5 and give it for 2-3 days, or you can give 75 units also on daily, and give it for 4 to 5 days, and you'll find that she will pop up with follicle बनेंगे इनके. But याद रखिए, important here is AMH हाई है. AMH9 के साथ में सोनल मेरे विचार से इस दिस गर्ल शुड हैव अराउंड 15-20 follicles minimum. By giving letrozole for 7 days or for 5 days, then add HMG, she will get 2-3 dominant follicles. 2-3 follicles तक are accepted. बट अगर उसके पास follicles ज़्यादा हैं, 15 मिलीमीटर से ज़्यादा follicles हैं, 4 या 5, in that case I may even cancel my cycle. So be very careful. ऐसे केसेस हम डेली बेस पे हैंडल करते हैं, बट इसके अंदर मैं पहले बोलूंगा डू गिव देम मेटफॉर्मिन आल्सो. डू गिव Yes, देम sir. मेटफॉर्मिन Definitely. टू क्वाइटन देयर ओवरीज. आप देती हैं सोनल मेटफॉर्मिन? Yes, sir. Metformin, myoinositol, that is for quieting their ovaries. 6 weeks या के सो बाद, if we give the same dose, they usually respond. दे रिस्पॉन्ड. ब्यूटीफुल, Hmm. वेरी वेल डन. दैट्स व्हाट आई आल्सो डू सोनल. So I think gray hairs and black hairs think alike. So हम सब लोग ठीक काम कर रहे हैं. So I think we do that, and थोड़ा शांत रहिएगा इसके अंदर. Don't cross a dose of 75. I will say give them 37.5 for 7 days. 6-7 days she will respond. But don't go and give 75 on day 1, 75 on day 2. थर्ड डे पे अरे स्टार्ट क्या हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा, 150 कर देते, फिर 150 कर देते, फिर फंस जाओगे ज़रा इसके अंदर. तो बड़ा शांति के साथ में give them 37.5 for 4-5 days, and then you make it 75 and they will respond. रिस्पॉन्स अच्छा आ गया, बहुत खुश नहीं होना, अभी भी डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है. तो जस्ट सी टू इट दैट इन केस वी हैव मोर देन 3-4 फॉलिकल्स, कैंसिल इट. उसे में ट्रिगर आपका रहेगा HCG का, एंड HCG ट्रिगर इज अ वेरी डेंजरस ट्रिगर इन such patients with AMH of 9. Just be careful about that. But do call me in case you get stuck. We are always here to help you out. Hi Shivani, I was missing you. I was wondering where is Shivani today. So there's a question from Zahida. Zahida. Yes, sir. आप इसे लेंगी? अब सोनल आप बताएं क्या करें. A person 15. was having 15 million count before varicocele surgery. Then after doing surgery, he got abnormal result like azoospermia. What Zahida to आप do? कहाँ की है? From where is Zahida from? So Zahida Angel. तो Zahida सवाल ये रहेगा कि उनको सर्जरी क्यों किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल. Hmm. ठीक है ना सोनल, दिस इज व्हाट Yes, sir. Yes, sir. आप support करते हैं. तो सर्जरी करनी ही नहीं चाहिए. आई फील दैट वी शुडंट डू सर्जरी इन अ केस ऑफ varicocele. So we have to, in this case we have to, maybe yes, whatever you did was right, somebody did was right. अगर एजोस्पर्मिया आ जाता है ऐसे केस के अंदर, what to do? ऐसे confirm the एजोस्पर्मिया, it will be an non obstructive एजोस्पर्मिया. इस केस के अंदर FSHI आएगा और टेस्टोस्टेरोन और LH नॉर्मल होंगे 99.99%. In such cases I think you really can't do much. Just wait and watch. Give them some antioxidant. No, he's a case of he'll be a case of impending hypogonadism with low sperm count, with very low sperm count. So what I will do is, I have two options. Either I take them and do their IVF by doing their TISA or micro TISA, or the other method is that I prepare them first. So for preparation के लिए Sonal, I like to give them and Zahida, I like to give them some sort of CoQs or carnitines or zinc multivitamins. Give them these drugs, and after we've given them for 2 months, we can go and do their TC and IVF and MH. surgical. Hmm.
बट आजकल काफ़ी पेपर्स पढ़ने में आ रहे हैं, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि दे से दैट वी शुड बी वी मे गिव देम क्लोमिफीन और लेट्रोजोल. सम पीपल गिव एफएसएच आल्सो. सो ये मैंने एक हमारा क्वेश्चन पहले भी हैड ए कर्टन रेजर वेयर वी स्पोक अबाउट दिस, that non-obstructive azoospermia, many people give clomiphene or letrozole also because they feel they want to increase the levels of FSH, which are already high. I don't agree to it. So जाहिर ऐसे केस के अंदर I think the right answer will be that we go in for, in case you want to give, you can give them some sort of multivitamins, antioxidants, and then go in for TISA or a micro TISA. This is what I will do. And then, but याद रखिएगा कि वेरिकोसील को हम ऑपरेट नहीं करते हैं नॉर्मली. बट इस केस के अंदर आपने शायद करके गलत भी नहीं करा, बिकॉज वेरिकोसील वाज सो एडवांस दैट ही इज फाइनली लैंडेड अप इन एजोस्पर्मिया एंड a non-obstructive azoospermia. So TISA will be the right choice. In case patient can afford, we can go in for a micro TISA also. Thank you so much. We have more questions, sir. Hamad Khan is asking, DF 14 mm on day 11, ET just 4.3 millimeters, estrogen 2 mg given, what should be done next, sir? DF 14 millimeter on day 11, ET just 4.3 millimeter, 2 millimeter. तो इसके अंदर कुछ करना नहीं है. सबसे पहले मैं वही आपको बात बोलूंगा डॉक्टर कमाल के, ऐसा है क्यों? सी प्रॉब्लम इज दैट हम लोग एक एक लाइन को ट्रीट करते हैं, वो हमें नहीं करना है. हमको पहले पता करना है कि इस पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम है तो किस लेवल पर है. वाई इज अब 14 मिलीमीटर का अगर फॉलिकल है, 2 फॉलिकल डे एंड डे 11 ET 4.3, तो अगर आप देखें तो डे 11 पे फॉलिकल 14 का नहीं होना चाहिए ना. डे डे 14 का फॉलिकल हमें मिलता है तकरीबन डे 7 पे या डे 8 पे. फॉलिकल से ग्रो, एम आई राइट सोनल? फॉलिकल ग्रो एट a rate of Yes, around sir. Yes, 2 sir. millimeters every day. तो Yes, मुझे ऐसा लगता है yes, sir. ये पेशेंट जो है ये एनोवुलेटरी पेशेंट है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है. तो आप बेहतर जानते होंगे इस पेशेंट के बारे में. अगर ये पीसीओ पेशेंट है तभी इसका फॉलिकल 14 मिलीमीटर का है, और ये डोमिनेंट फॉलिकल है बट स्मॉल फॉलिकल है. सो जब 14 मिलीमीटर का फॉलिकल होगा तो ईटी छोटा ही होगा ना, तो आपने इन्हें ईटू क्यों दिया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टोटली विद यू. आई एम लविंग द वे यू पीपल आर इंटरेक्टिंग टुडे. दिस मीन्स दैट आप अपने दिल की बात रख रहे हैं. तो मेरे दिल की बात यह रहेगी कि इसे आपको ईटू देना ही ईटू देना ही नहीं है आपने इसको ना. Yes, sir. सो थोड़े दिन आई बाद फील रिपीट अल्ट्रासाउंड करके देख. एग्जैक्टली सोनल. अब ईटी लाइनिंग बनाने के लिए हमको ईटू चाहिए, और ईटू शुड बी अराउंड 200 पाइकोग्राम्स टू गिव यू ए गुड ईटी. अब इस पेशेंट का ईटू कम होगा ना, ईटू होगा ही कम बिकॉज फॉलिकल छोटा है. सो आई थिंक वी शुड वॉच दिस पेशेंट फॉर सम मोर टाइम. When follicle becomes around 16-18 millimeter, 19 millimeter, ET will become around 8 millimeter. और मेरे विचार से पेशेंट पीसीओ पेशेंट है. सो डॉक्टर हम आप कहाँ से हैं? अच्छा लगेगा जानकर आप कहाँ से बात कर रहे हैं. जाहिदा ने लिखा था, जाहिदा इज फ्रॉम जम्मू. आई थिंक सो, आई एम नॉट रॉन्ग, जाहिदा इज फ्रॉम जम्मू. Yes, sir. Yes, sir. सो गुड टॉकिंग टू जाहिदा फ्रॉम जम्मू. तो अगर आप बता पाएंगे हम आप कहाँ से हैं तो अच्छा लगेगा हमको जान के. बट आई फील वी शुड नॉट. It is a PCO patient. So you wait, that is more important. Yes. Sir, Dr. Shivani is asking that follicular and there is discrepancy between follicle and endometrium cannot lead to pregnancy even on E2 or antioxidants. हाँ, तो ये हमें ऐसे केस में हमको ये हमें करना ही नहीं चाहिए ना. That's what Shivani is right here. हमको ये IVF का पर्पज ही क्या है? देखो हम लोग अभी डिलीवरी नहीं करते. We people don't do many things. तो we have to ensure that there is no asynchrony ना. अगर हम ठीक से स्टिमुलेट करेंगे और ठीक से पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो एसिंक्रोनी होगी नहीं. और एसिंक्रोनी तभी होती है. ईटी वाज 3.4 मिलीमीटर ऑन डे 11. सो हमारे वांट टू नो कि ये क्या पेशेंट पीसीओडी पेशेंट है, इसका एमएच कितना है, ये एफसी कितना है, देन आई कैन यूज अ बेटर आंसर. तो आई एम टोटली विद यू शिवानी. ईटी विल ओनली फॉर्म व्हेन द फॉलिकल is around
18 to 20 मिलीमीटर, उससे पहले 18 to ईटी का कोई 20 रोल ही नहीं millimeters. है, रोल ही नहीं है उससे पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So Dr. Shivani is asking, what is your opinion about sirtuins? सर्टिफिकेट्स आई यूज क्वाइट अ लॉट शिवानी। मेरे को हमेशा लगता है कोई नई चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर आप देखें तो एविडेंस किसी किसी चीज़ का भी नहीं है। वी डोंट हैव एविडेंस अबाउट मल्टीपल थिंग्स। सर्टिफिकेट्स इज ए न्यू, इट्स ए न्यू मॉलिक्यूल। सर्टिफिकेट्स आर द स्मॉल प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। ये 7 तरह के होते हैं। सर्टिफिकेट्स 1 2 3 प्राइमरीली ओवरी और फॉलिकल्स में काम करते हैं। टोटल वी हैव 7 टाइप ऑफ सर्टोनिन्स, एंड सर्टोनिन्स की मात्रा एक एनीवन हु इज प्रेग्नेंट और हु विल बी इजीली प्रेग्नेंट, जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, जिन्हें हाइपरटेंशन नहीं है, जो लोग हेल्दी हैं, जो यंग हैं, उनमें सर्टोनिन्स की मात्रा बॉडी में ज़्यादा होती है। जो किसी कारणवश सर्टोनिन्स क्या करते हैं, सर्टोनिन्स लुक आफ्टर आवर डीएनए। जो हमारे बॉडी का डीएनए है ना, स्पर्म्स का, एग्स का, सर्टोनिन्स उनको 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 वो उनकी उनकी केयर करते हैं। अगर सर्टेनिन्स की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो इट्स ओके, मतलब कि जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। अगर ये वैल्यूज़ कम हो रही हैं, दिस मीन्स कि द वुमन इज गोइंग इनटू ओवेरियन फेलियर, और द वुमन इज हैविंग डायबिटीज और hypertension or dyslipidemia. Here there will be a problem. So सर्टेनिन्स are nowadays available in the market. They come in सर्टेनिन्स बढ़ाने का तरीका होता है, we give them NMNs, and so in case we give somebody NMNs and ergothioneins, we can look after certain levels in the body. So now drugs are available and people are using it. I'm also using it quite a lot and I'm getting good outcome. So with the women who are elderly, who have got poor ovarian response, sertonins for me they work well. But I think we should wait for more uh, better randomized controlled trials for that. But I do use them quite a lot. Okay, thank you, sir. Sir, Dr. Hamad Khan is saying that patient is not PCO, her AMH is 1.7 and rest investigations within normal range. Sir, तभी हमें वेट मेरे कर। if yes sir. हाँ, बोलिए 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 सोनी बोलिए। उसमें सर वेट ही करेंगे, इट डिपेंड्स कि आपने दिया क्या था। ओरल ओवुलेजन सिर्फ दिया था, देन वी सी हर आफ्टर 3 days वो 14 से 16 18 तक पहुंच जाना चाहिए, ईटी भी हो जाना चाहिए। if then till it is asynchronous, then we have to look for the cause, whether it is tuberculosis, some underlying cause. Then we have to rule out the cause for thin ET when the follicle is fully formed. We have to say thin ET when the follicle is fully formed. ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। That is what I feel. सो कोई पूछ रहा है सर्टेन का ब्रांड क्या होता है। इसका ब्रांड जो हमारे देश में एक ही ब्रांड है, दैट इज कॉल्ड EQOQ, दैट्स द ब्रांड ऑफ सर्टेनेंस। सो इसका ब्रांड आप लिख भी दीजिए। इसका जो मेन है दैट इज कॉल्ड EQOQ एंड यू कैन बाय इट फ्रॉम मार्केट। इट्स अवेलेबल वेरी कॉमनली नाउडेज, सो इट्स अ गुड drug which we use. So I think the whole nowadays we are moving towards we are talking a lot about epigenetic changes, and these all can get you a lot of epigenetic they are anti-aging molecules, so they are very good for us, so I think we can use them. Yes, let's move forward. Let's move for the next question. That is, what is the cost of and success rate and cost of these treatments, which everybody wants to know from the general public. And Yes, does the insurance covers these fertility treatments? अभी गवर्नमेंट के थ्रू ये ट्रीटमेंट कवर नहीं होती है, नंबर वन। some private companies are giving some amount of care. They give you insurance for fertility treatment, but not all. That's number two. The cost of timed intercourse will be, say, 3-4 injections, 2-3 ultrasound. So around, I think, say it will cost you around rupees 7,000-8,000 rupees or 10,000 rupees for a timed intercourse, जहाँ पर हम कुछ टैबलेट, कुछ 3 टीके लगाकर कुछ स्कैन करेंगे, एक ट्रिगर का टीका लगाएंगे। Going to IUI, the costing may be around 16 से 17,000 रुपया. That include IUI procedure and 3-4 injections and some tablets and a trigger injection. And for IVF, the cost may be around 1.8 to 9 lakh rupees.
So normally in IVF, people charge around 1 lakh rupees or 1,10,000 rupees for an IVF cycle plus drugs. So around 1.85, 1.9 का एक अच्छा with good drugs we can carry out an IVF. IUI is 9,000 or 10,000 plus drugs of rupees 5 or 6,000 and time intercourse के अंदर 5 से 6 हज़ार रुपया लगता है. But more than money, I feel we should make the right diagnosis and give them the right care. IVF is the last thing in our mind when we do any fertility management. हर अच्छा डॉक्टर IVF को लास्ट प्रायोरिटी रखता है. लास्ट प्रायोरिटी. Definitely, sir. Before it comes, कम से कम 2 या 3 IVF फेलियर, IUI फेलियर्स. उससे पहले आएंगे 2 या 3 टाइम्ड intercourse failure. Then Intercourse comes failures. yes. What next? Next, sir, if these fertility treatments do not work for a couple, then what are the alternative routes do they have for parenthood? That is nowadays लोग बात कर रहे हैं surrogacy, adoption. So couple के लिए मतलब how can a couple decide if adoption and surrogacy Hmm. is the right path for them? So I think the very important part is that uh, going in for surrogacy or adoption or going in for egg donor cycles is 3 options which we have. But I think egg donor is the last thing we should do for our patients. Egg donor last thing because I Yes, sir. think आज के ज़माने के अंदर everyone wants to have their own little babies. So they want to have their own babies. We should not be forcing them towards going into donor cycles. Donor cycles. अगर वो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं then we should always go in for self cycles number one. In case a couple has got recurrent implantation failure, pregnancy losses, yes, we can go in for a donor cycle. Absolutely correct. Then going to something like surrogacy. Surrogacy is not a fashionable statement. गवर्नमेंट फैशन हमें गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है सरोगेसी करने का हर केस के अंदर. Surrogacy can only be done when the lining is bad or uterus is bad, multiple failures have occurred. They have to have some indications. It's not that कि हमारे 3 IVF फेल हो गए या 2 IVF फेल हुए we go in for surrogacy. That's not the way it works. So we have to have multiple failures, multiple losses. Only then we can go in for surrogacy. So I don't think surrogacy. अगर आपका uterus ठीक है and everything is fine, then we should not go towards surrogacy straight away. I'm not in favor of surrogacy. Neither I'm in favor of doing egg donor cycles. They all have indications. और मैं इतना बोलना चाहूँगा कि सोनल मैंने पहले भी कहा था कि नो कोई भी रंग कॉमन नहीं है. तो अगर मैं आपको सारे रंग दिखाता हूँ तो सारा क्या रंग है ये? ब्लैक. Black. सारे पेन ब्लैक है. अगर ऐसे किया तो सारे रंग डिफरेंट है. तो हर पेशेंट डिफरेंट है हमारे पास में. तो वी हैव टू लुक एट एवरी पेशेंट. ब्लू कांट बी ग्रीन, ग्रीन कांट बी ऑरेंज. तो टेक ए डिसीजन आफ्टर टॉकिंग टू द पेशेंट एंड और सबसे एक ही गुजारिश करूंगा कि प्लीज फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस. Government guidelines are very important to be followed. Follow government guidelines and this is very important. Don't break the guidelines. Yes. Definitely, sir. In ART law, surrogacy is basically for couples with recurrent failures, recurrent implantation failures, या फिर कुछ uterus का factor है, या फिर the female has some medical condition for which she is not eligible to carry the pregnancy. It has some effect on her life. So in those cases only, proper medical board eligibility के बाद ही a Correct. couple Correct. gets a certificate for surrogacy. Correct. 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 So last, I just want to have, we have many couples who are feeling hopeless in this fertility journey. So आपका उनके लिए क्या advice रहेगा? How to remain hopeful and emotionally stable during this journey? तो मेरा सिंपल सा एक मैसेज ये रहेगा that please by God's sake go to the right doctors. Infertility management. सबसे पहले एक इनफर्टिलिटी एक तरह का रॉन्ग स्टेटमेंट है. ऐसे फर्टिलिटी मैनेजमेंट आप एक अच्छा डॉक्टर चुनिए जो कि आपका साथी बन सके. ये एक लंबी जर्नी होती है. एक अच्छा डॉक्टर आपको बार बार शायद बुलाए, आपको कुछ प्री ट्रीटमेंट दे और आपका ट्रीटमेंट डिले करेगा.
So I think you should meet 2-3 doctors or you go by the reference of a particular doctor. जब आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, then you surrender upon the doctor. That is very very important. So pick up the right doctor is the thing number one. Number two, आपको जानना ज़रूरी है कि 10 में से डॉक्टर उषा कह रही हैं कि सब फर्टिलिटी है. यस, आई एग्री विद यू मैडम. सो इनफर्टिलिटी इज ए वेरी हैवी वर्ड. ऐसे किसी को बोलना कि बांझपन इज अ रॉन्ग वर्ड. सो इट्स सब फर्टिलिटी. आई टोटली एग्री विद यू मैम. एंड आई एग्री विद डॉक्टर शिवानी ऑल्सो वट एवर शी हैज रिटन. एग्रीड. सो हमको हमको ये जानना है कि हमें जर्नी में अकेले नहीं है. अब मज़ा इसमें ही आता है कि अगर हम अपनी ओपीडी में देखें, जो हमारे पास हमारे जो मेहमान आते हैं, आप लोग हमारे मेहमान हैं एक तरह से. आप लोग बहुत यंग दिखते हैं. यंग दिखते हैं. यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ. देख के लगता नहीं कि कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है. यू लुक अमेजिंगली यंग एंड वेल ड्रेस्ड. बट अनफॉर्चुनेटली कोई बोलेगा नहीं कि आपको ये प्रॉब्लम है. और बड़ी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है. मैंने बोला कि हर 10 में से 3 या 4 को या 5 को ये प्रॉब्लम है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर वर्किंग. सो वी शुड फाइंड द गुड डॉक्टर जो कि इसी प्रोफेशन में हो, उसने खूब सारे केसेस हैंडल किए हों, दैट यू कैन कम टू नो बाय देयर वेबसाइट एंड बाय देयर एज एंड एक्सपीरियंस. एंड जो डॉक्टर आपके साथ टिश्यू पेपर शेयर कर सकता है, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, जो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकता है, हु कैन डू हैंड होल्डिंग, जो आपकी बात सुन सकता है, समझ सकता है और आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है और आपको डांट भी सकता है. हर अच्छा डॉक्टर जो होगा आपको डांटेगा भी. He will scold you also as an elder brother. So you should choose that doctor. And once you choose the right doctor who's qualified as per the act. Now, Government of India has made some guidelines for treating infertility. Not everyone can treat fertility problems. So get the right doctor, go to the right OPD, talk to him. डॉक्टर की बात सुनिए, समझिए, उनसे इमोशनली कनेक्ट कीजिए. अगर नहीं कर पा रहे हैं देन यू मे चेंज द डॉक्टर. और फिर घर जाकर प्लीज गो टू गूगल. आई से एवरीवन गो टू गूगल. गूगल में जाएं और अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानें, समझें, एंड देन आई थिंक यू शुड टेक ऑन द ट्रीटमेंट. एंड दूसरी बात ये कि आज के समय के ऊपर किसी को बेबी ना हो सके ये पॉसिबल ही नहीं है. तरीके बहुत हैं. समवन मे नीड ए सरोगेसी, समवन मे नीड a donor cycle, someone may need a sperm donor cycle. There are multiple ways to handle. Somebody may need a PGT or embryo biopsy, but I think everyone can have a child. Be patient, be calm, and in case you have any difficulty in understanding your issues, problems, feel free to correct us. You can visit our YouTube channel, our website. You all have our numbers. Just you can call us anytime and we are with you. सो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था आपको अच्छा लगा होगा. बहुत बेसिक टॉपिक था. इट वाज ओनली टू कनेक्ट इमोशनली. जब हम बात करते थे कि मेरी ट्यूब्स में हाइड्रोसेल्पिंग्स है, पानी भरा है तो मैं क्या करूँ, एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. समबड़ी से मेरे अंडादानी में गांठें हैं, एंडोमेट्रोसिस है, मैं क्या करूँ. कोई कहते हैं मेरे खूब सारे अंडे बनते हैं, मुझे महीना ही नहीं आता है, एनोवुलेटरी पीसीओडी में क्या करूँ. कोई कहते हैं कि मेरे बच्चे मल्टीपल एम्ब्रो ट्रांसफर किए, मेरा बेबी नहीं हो पाता, मैं क्या करूं. किसी को एजोस्पर्मिया है. आई थिंक दे आर वेरी सिंपल टॉपिक्स टू डील विद. बट आज का टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स था और मैं आशा करता हूं कि हमने आपके साथ दिल से बात करी. तो सोनल, थैंक यू सो मच. यू आर जस्ट वंडरफुल, जस्ट वंडरफुल. वी बोथ स्पोक फ्रॉम आवर हार्ट. एंड आप अपना 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 जो आशा की किरण है ना, अपना उम्मीद आशा को बुझने मत दे. अगर एक नहीं तो कोई और आपको डॉक्टर मिलेगा. एंड जस्ट पिक अप द राइट डॉक्टर एंड गो टू देम. एंड हताश नहीं होने का. हर चीज़ का इलाज है. इलाज का तरीका बदल सकता है, इलाज की जगह बदल सकती है, इलाज का समय बदल सकता है. आई थिंक थिंग्स विल हैपन फॉर यू. सो ऑल द बेस्ट. एंड एंड में आई थिंक सोनल, यू कैन से देम विश देम वेरी हैप्पी न्यू ईयर from your side and my side. Yes, thank you so much for being part of today's session, and we wish you all happy new year, and we wish you all the best in your path forward. To all the doctors and to all the couples, aspiring couples, we wish you all have your own child in 2025.
Yes, if you have any problem, you can always contact us and take any guidance online, and just be happy. Happy New Year to all of you. Bye. Happy Thank New you. Year. Jai Hind. Bye. And thank you, Thank you. Sonal. You were Thank you. fantastic. Thank you, sir. Thank Thank you you, so Sonal. much You were for. fantastic. Thank you, sir. Okay. Thank you. Bye. Okay, sir. Bye. 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 Bye.